Assalamu alaikum. Are you hearing me? Ji, Dr. Hamid, yes. Let us start. Assalamu alaikum. Welcome everyone. Thank you all for finding time and joining us for today's webinar. My name is Muhammad Hamid and I am currently working as clinical pharmacy specialist, infectious disease at the Indus Hospital, Karachi. If you have any question during the presentation, type them into the chat box. I will bring them up during the presentation if necessary. Or we will also have time for question at the end of presentation. Now, without further delay, we will turn the time over the presenter. Our presenter today is Dr. Sarwad Latif. Dr. Sarwad Latif has done PharmD. She is certified professional in healthcare quality. Along with that, she is board certified sterile compounding pharmacist. Dr. Sarwat is currently working as sterile compounding in charge at Dr. Sulman Al Habib Hospital, Saudi Arabia. She is going to present introduction of CPHQ. Over to you, ma'am. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Well, thank you everyone for joining the session and showing your interest in the CPHQ prep course. I hope my screen is visible. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So, well, today the introduction of the CPHQ, this is all the session will be about. I will be just explaining what basically the CPHQ and what are like how you give the exam and everything. I will be bilingual in the language. I will be speaking in English and Urdu. So it will be easier for you to understand. Well, I don't have anything to disclose. Before going into the detail of the CPHQ prep course, let me introduce you to the organization and the speakers and my team, which is working on this CPHQ prep course. So basically our organization, Giving Back to Pharmacy in Pakistan, is a non-profit organization which comprises of volunteer pharmacists around the world, which are aiming to refine the pharmacy profession. The vision of our organization is to empower the pharmacist community and to enable the pharmacists to equip with the international standards. So basically, हम लोग चाहते हैं कि pharmacy profession को uplift किया जाए और जो लोग pharmacist हैं या काम कर रहे हैं उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस का पता चले कि इंटरनेशनली दुनिया में क्या बेस्ट प्रैक्टिस है. हमारे कुछ कोर्सेज ऑलरेडी ऑनगोइंग हैं. लास्ट ईयर BCPS का कोर्स डॉक्टर कामरान ने कंडक्ट कराया था. बाकी ऑन्कोलॉजी, बोर्ड सर्टिफिकेशन ऑफ ऑन्कोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज हम इसको प्लान करे हैं. स्टिल दिस इज अंडर प्रोग्रेस और आई थिंक अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड है गिविंग बैक टू पाकिस्तान से या फॉलो कर रहे हैं हम लोगों को, तो उनको पता होगा कि वी हैव डन वेरियस वर्कशॉप्स एंड कॉन्फ्रेंसेस. So in future, we have also, you will be getting the notifications for that. Short introduction of my team. इस organization के director, Muhammad Siddiqui, Dr. Muhammad Siddiqui. Basically, he's a director of inpatient pharmacy services who's working at Cleveland Clinic, Abu Dhabi. Myself, I'm the lead of this program. एंड जिशान अली जो हैं वो को लीड हैं. बाकी हमारे मॉडरेटर्स और वॉलंटियर्स जो हैं मोहम्मद साद, नूर अल्लाह खान, मोहम्मद हामिद, अरूसा कमल. List of the speakers. Inshallah, you will be knowing, you will be in contact with these speakers. Basically, these speakers are working at national and international level in reputable organizations, and they are the expert in the field of the quality.
I will try to encourage you guys to join the live sessions because अगर speaker available होता है तो आप at the same time आप उनसे questions पूछ सकते हैं ताकि speaker उसी वक्त आपको जवाब दे दे, क्योंकि इस तरह अगर आप लोग recording सुनते हैं और आपके पास कोई question होता है तो speaker को approach करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, like it will be delay. So अगर आप लोग live sessions हर speaker के join करें, schedule already group में shared है, तो अगर आप लोग join करें तो it will be better. What you will be learning at the end of this course, ये 1 month, 1.5 month like this इसका duration है. आप लोग basically at the end of this course आप लोगों को पता चल जाएगा कि CPHQ क्या है, क्यों है, कैसे है, एग्जाम, क्योंकि कुछ सर्टिफिकेशंस ऐसी होती हैं जिनको लेके चलना, मतलब उनकी रजिस्ट्रेशन कराना, उनका कंटेंट लेना, ये सब चीजें लेना बहुत मुश्किल होता है. मतलब अप्रोच करना, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितने दिनों में तैयारी करें, ये सारी चीजें जो हैं हम लोग आपको ड्यूरिंग द सेशन आप लोगों को पता चल जाएंगी. सो बेसिकली व्हाट इज CPHQ? आप नाम से आई थिंक अगर लास्ट ईयर किसी ने, नॉट लास्ट ईयर, लास्ट सेशन हम लोगों का ज्वाइन किया होगा, वो भी इसी साल था, एट द स्टार्ट ऑफ जनवरी आई थिंक वी स्टार्टेड फॉर आवर फर्स्ट कोहॉर्ट इन जनवरी. तो लोगों सबको पता होगा कि दिस इज बेसिकली सर्टिफाइड प्रोफेशनल इन हेल्थ केयर क्वालिटी. इसकी एफिलिएशन जो है वो नेशनल एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर क्वालिटी से है, NAC वालों से इसकी एफिलिएशन है. एक्रीडेशन इसकी ये बेसिकली दिस, मैं एक बात वैसे क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पर कि ये सिर्फ सर्टिफिकेट है. दिस इज नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ डिप्लोमा और मास्टर्स इन हेल्थ केयर क्वालिटी. ये इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, ये जस्ट एक सर्टिफिकेट है. इसके फायदे मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि इसका क्या फायदा होगा, लेकिन ये है कि इसकी एक्रीडेशन जो है वो नेशनल कमीशन फॉर सर्टिफाइंग एजेंसीज के साथ है. इससे एक्रीडेशन का ये फायदा होता है कि ये इंटरनेशनल, ये सर्टिफिकेट इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है. सो अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर कहीं जाते हैं, तो आपका ये सर्टिफिकेट रिकग्नाइज किया जाएगा. बेसिक ऑब्जेक्टिव जो इस कोर्स के हैं वो प्रमोट करना होता है और मेंटेन करना होता है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करना होता है और मेंटेन करना होता है. और इससे ये भी एक फायदा होता है कि प्रोफेशनल्स को स्पेशल रिकग्निशन मिलती है. लाइक अगर किसी ने किया हुआ है तो पीपल विल रिकग्नाइज यस. और जो बंदा इससे सर्टिफाई हो जाता है, लाइक इफ यू हैव पास्ड द एग्जाम, आप लोगों के क्रेडेंशियल्स जो होते हैं वो CPHQ वाले जो NAC वाली सोसाइटी है इनके पास सेव्ड होते हैं. तो अगर कोई रीचेक करना चाहे तो वो आराम से NAC वालों से चेक कर सकता है, मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर क्वालिटी वालों से चेक कर सकता है. Why CPHQ? क्यों CPHQ किया जाए, क्या फायदा होगा? ये स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखी हुई है, लाइक बिकॉज इट हेल्प्स यू टू प्रमोट द हेल्थ केयर क्वालिटी. लेकिन ये इतनी सिंपल होती नहीं है. प्रैक्टिकल फील्ड में ये बहुत कॉम्प्लेक्स है. इसीलिए सर्टिफिकेट्स, इस तरह के जो हेल्थ केयर क्वालिटी के सर्टिफिकेट्स हैं, अगर वो हों तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, बल्कि खुद को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं. जो बेसिक आइडिया जो होता है वो ये होता है कि जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इज टू इम्प्रूव द केयर ऑफ द पेशेंट्स. तो जिसका जितना स्टैंडर्ड ऊपर होगा डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन बेटर होगी. लाइक अगर मैं एक हॉस्पिटल में जाती हूँ, वहाँ पर JCI जैसे एक्रीडेशन हुई हुई है, तो हम उन हॉस्पिटल्स को क्यों बेटर समझते हैं? क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे होते हैं. तो दैट्स व्हाई वी प्रेफर टू गो इन द ऑर्गेनाइजेशंस जिनका कोई स्टैंडर्ड है. तो इसी तरह CPHQ भी अगर किसी ने किया हुआ है तो आपको खुद को भी फायदा होगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होगा. बेसिकली जो CPHQ मतलब को होता कौन है? जिसने एग्जाम पास किया हुआ हो, उसके पास कॉम्पिटेंसी हो, नॉलेज हो, स्किल्स हो, ये और अंडरस्टैंडिंग हो. ये 4 चीजें उसके पास होनी चाहिए: कॉम्पिटेंसी, नॉलेज, स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट और क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस. क्योंकि क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस और क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस, ये दोनों चीजें किसी भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को अपलिफ्ट करने में बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं. क्योंकि आप अगर क्वालिटी पे काम नहीं करें तो इसका मतलब है कि, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ.
तो इसमें ये होता है कि अगर आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस से नहीं गुजरते तो आप उसी तरह बैकवर्ड रहते हैं। अब जैसे अगर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, अगर आप इस तरह, फिर ये होता है कि टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस हो गई है, अगर आप अपने हॉस्पिटल में टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन करते हैं तो आपके इतने ज़्यादा जो एरर्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगी इस पे कि मैनुअल प्रिस्क्रिप्शंस, अगर कोई मैनुअल प्रिस्क्रिप्शन किसी हॉस्पिटल में चल रही हैं, अगर मैनुअल की जगह वो टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू कर दें तो हाफ ऑफ द एरर्स ऑफ हैंड राइटिंग जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। जो मिस्टेक आपकी हैंड राइटिंग की वजह से होगी वो टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं होगी। तो इसलिए इस तरह ये बिल्कुल एक छोटी सी एग्जांपल है ताकि आपको आइडिया हो कि ये चीज़ें जो होती हैं इस मतलब हेल्थ केयर क्वालिटी या फिर जो क्या कहते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस जो है या फिर इम्प्रूवमेंट प्रोसेस जो है, इन ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं इससे ही आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लिफ्ट करते हैं। अब एग्जाम के बारे में बात करते हैं। बेसिकली एग्जाम जो होता है वो सिर्फ MCQs आते हैं, दैट्स वेरी गुड थिंग। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 140 होंगे, जिसमें 15 जो होते हैं वो प्री टेस्ट होते हैं एंड 125 विल बी स्कोर्ड। इसमें आपको नहीं पता होता कि प्री टेस्ट कौन से हैं और 125 कौन से हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि आप सारे क्वेश्चंस को मार्क करें। आई वांट टू से इज दिस के आप सारे क्वेश्चंस आंसर करें, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को मार्क करें। ऐसा नहीं कि वो प्री टेस्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि 15 क्वेश्चंस पहले आपको प्री टेस्ट दे रहे हैं फिर आप 125 जो स्कोर्ड क्वेश्चंस हैं उन पे जा रहे हैं, नहीं, वो रैंडम होते हैं, आपने सारे क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। कौन लोग एलिजिबल हैं इसके लिए? कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कोई भी, चाहे वो नर्स है, फार्मासिस्ट है, फिजिशियन है, लैब टेक्नीशियन है, कोई भी जो हेल्थ केयर उस कहीं भी हेल्थ केयर में काम कर रहा है, किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, क्लिनिक पे काम कर रहा है, व्हाटएवर, वो एलिजिबल होगा इसके लिए। लेकिन कुछ सम सैंक्शन कंट्रीज, उनमें ये सर्टिफिकेट नहीं, आप मतलब ये एग्जाम नहीं दे सकते। उसमें आई थिंक यूक्रेन, सीरिया, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, चाइना, ईरान, सूडान, ये वाली कंट्रीज आते हैं जो नहीं दे सकते। मतलब इनके वहाँ कोई आई थिंक इन नैक वालों का कोई इनसे कोई है इशू, तो इसकी वजह से उन कंट्रीज में आप ये एग्जाम नहीं दे सकते। एग्जाम डेट्स, एग्जाम कब कब होता है? 4 times a year होता है। बेसिकली एप्लीकेशन पीरियड ओपन होता है, आपने इसमें अपनी एप्लीकेशन सबमिट करानी होती है और आपने अपना एग्जाम विंडो जो होता है उसमें से आपने अपनी डेट चूज करनी होती है कि इस डेट को मैं एग्जाम दूंगा। इस साल की सारी विंडोज क्लोज हो चुकी हैं एक्सेप्ट लास्ट विंडो, अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, August 9 to November 14, ये एप्लीकेशन पीरियड है। इसी दौरान आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करानी है और फिर आपको एग्जाम विंडो में से दिसंबर में विंडो ओपन होगी। इसका मतलब है कि फ्रॉम 4th of December until 17 आप किसी भी डेट में अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द सेंटर आप अपना एग्जाम जो है वो स्केड्यूल कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर की विंडो अभी ओपन नहीं हुई और उनका स्केड्यूल भी नहीं आया, लेकिन यूजुअली होता यही है कि इसी सेम रेंज के अंदर एग्जाम विंडोज ओपन होती हैं, लाइक मार्च में होगी, जून में होगी, सितंबर में होगी, दिसंबर में होगी, नेक्स्ट ईयर भी। लेकिन डेट्स जो होती हैं वो मतलब वेरी कर सकती हैं। अब थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं एग्जाम के बारे में। एग्जाम की फीस जो है वो $629 है। अगर आप लोग नैक के मेंबर नहीं हैं तो $629 है, लेकिन अगर आप नैक के मेंबर हैं तो आई थिंक $579 हैं। ये मैं फीस बता रही हूँ उन लोगों की जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर आप US में होते हैं उनकी फीस थोड़ी सी इससे कम होती है। अगर आप नैक के मेंबर हैं आई थिंक $479 है, और अगर आप नैक के मेंबर नहीं है तो 500 समथिंग डॉलर्स है। ये फीस जो यहाँ पर आपको स्क्रीन में शो हो रही है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की है जो नैक के मेंबर नहीं हैं। नैक मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ क्वालिटी। इसकी रीसर्टिफिकेशन भी होती है। रीसर्टिफिकेशन को थोड़ी सी देर में डिस्कस करते हैं, लेकिन उसकी फीस जो है वो $150 होती है। एवरी 2 years जो होता है वो आपने कुछ क्रेडिट आवर्स पूरे करने होते हैं और आपने ये फीस पे करनी होती है ताकि आपका नाम जो है वो उनके साथ उनकी क्रेडेंशियल्स में, आपका बैच और क्रेडेंशियल्स में उनके एक्टिव रहे।
इस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन जो होती है वो 3 आवर्स है, उसमें कोई ब्रेक नहीं होती। अगर आप ब्रेक लेते हैं, लाइक सपोज इन केस यू हैव एन इमरजेंसी और समथिंग, वो टाइम पीरियड जो होगा वो एग्जाम के उसमें काउंट होगा, मतलब वो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि वंस यू क्लिक द एग्जाम द टाइम विल स्टार्ट रनिंग, उसके बाद आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। तो अगर आप कहीं जाते हैं या मतलब जैसे 10-15 मिनट के ब्रेक लेते हैं तो वापस आएंगे तो वो 10-15 मिनट आपके ज़ाया हो चुके होंगे। मार्किंग और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, मार्किंग कोई नेगेटिव, एज पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इसलिए प्लीज ट्राई टू आंसर एवरी क्वेश्चन। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो हैं मल्टीपल हैं, आप जितनी मर्जी आप फीस पे कर सकते हैं, आप अटेम्प्ट्स देते रहें। मार्किंग क्योंकि आई थिंक लास्ट ईयर कुछ लोगों के को कंसर्न था इस बात पे कि स्कोरिंग कैसे होती है, या फिर अगर आपको होता है कि नंबर्स कैसे आते हैं, मतलब मैं पासिंग मार्क्स ले लूँ तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये मार्किंग इनकी एक प्रोसेस है एंग ऑफ मेथड, उसके थ्रू होती है। मैं इसके यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँगी BCPS वालों की। ये जो बोर्ड स्पेशलिटी है, इसमें मार्किंग जो होती है उनका स्कोर बेस्ड होती है। आपने 500 प्लस ले लिए हैं, आप पास हो। लेकिन इस एग्जाम में, CPHQ एग्जाम में एंग ऑफ मेथड के थ्रू मार्किंग होती है। उसमें आप वो ये नहीं देखते कि आपने कितने पास किए, मतलब आपने कितने क्वेश्चंस जो हैं वो पास किए हैं। उसमें इंडिविजुअल मार्किंग होती है, मतलब एक स्कोर सेट नहीं होता। माइट बी मैं 92 पे पास हो जाऊं, लेकिन जो मेरे साथ वाला 98 पे भी पास ना हो। तो वो एक प्रोसेस है एंग ऑफ मेथड, उसमें वो आपकी असेसमेंट ऑफ एग्जाम देखते हैं कि आपने इस एग्जाम में से कितने पास की, कितने क्वेश्चंस राइट आंसर किए हैं, उस हिसाब से आपको मार्क करते हैं और उस हिसाब से आपको पास करते हैं। असेसमेंट सेंटर लोकेशंस, मल्टीपल सेंटर लोकेशंस हैं। आई थिंक पाकिस्तान के अलावा बाहर अवेलेबल हैं एक्सेप्ट द सैंक्शनड कंट्रीज, लेकिन पाकिस्तान में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, यहाँ पर तीन सिटीज में सेंटर्स हैं। लेकिन सेंटर्स की आपको जब आप रजिस्टर करते हैं अपने आप को, आपको PSI वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर स्केड्यूल जब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरे सिटी में इस डेट अवेलेबल पे ये सेंटर अवेलेबल है या नहीं है। तो इसलिए लोकेशंस तो हैं, लेकिन क्या पता आपको उस विंडो में अवेलेबिलिटी ना मिले। तो इसलिए जब भी आप स्केड्यूल करें, आप वहाँ पर देखें, आप उस वेबसाइट पे जाकर देखें कि आपके सिटी में यहाँ पर कितनी कौन सी जो है वो कौन सा सेंटर जो अवेलेबल है। Can anyone please tell me, am I audible? Like you are listening me? Yes, ma'am, we are listening here. Okay, thank you. Candidates with disabilities, जिन लोगों में कोई डिसेबिलिटी है वो इस वेबसाइट पर जाकर इस पे मेल करें, दे विल हेल्प यू। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? कोई डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक रिक्वायर्ड नहीं होता। इसमें BCPS की तरह नहीं है बिल्कुल भी कि आपको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आपको लेटर भेजना है, पता नहीं इसमें क्या क्या और भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं BCPS वालों की। लेकिन इस एग्जाम के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं है, बस एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट पे अवेलेबल इस तरह है कि आप इनकी हैंडबुक पे जाएंगे, हम ग्रुप में वैसे शेयर कर देंगे इनकी हैंडबुक 2022 की अभी तक हैंडबुक अवेलेबल है। उसमें जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपने बस फिल करना होता है, आई थिंक वो इनको मेल कर देते हैं। तो और इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। कुछ लोगों का कंसर्न था कि एक्सपीरियंस कितना चाहिए होता है। एक्सपीरियंस अगर आप फ्रेश हैं, आपका अच्छा नॉलेज है, आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन एग्जाम का जो कंटेंट होता है वो बेसिकली ये एग्जाम का कंटेंट बनाते हैं, ये बेसिकली अपने माइंड में 2 years एक्सपीरियंस ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल को रखते हैं, कि ऐसा बंदा जिसने 2 साल किसी भी हेल्थ केयर उसमें ऑर्गेनाइजेशन में मतलब काम किया हुआ है, तो वो उस लेवल से बनाते हैं। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपको कुछ भी नहीं पता हॉस्पिटल की ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हॉस्पिटल का एक वर्किंग स्टाइल होता है, ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक लेवल ऑफ वर्किंग होता है कि इस तरह ये चीज़ ऐसे काम करेगी, ये डिपार्टमेंट इसके अंदर आता है, ये इसको आंसरेबल है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपको अगर बिल्कुल भी नहीं पता तो प्लीज़ डोंट गो फॉर इट। आप किसी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करें, पहले उनको समझें, फिर जो है आप इस एग्ज़ाम के लिए मतलब यू कैन गो फॉर द एग्ज़ाम देन। पेमेंट कैसे करनी है? पेमेंट जो है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं और चेक के थ्रू भी कर सकते हैं। चेक पे बस ये होता है कि आई थिंक यू हैव टू पे एक्स्ट्रा $25। तो क्रेडिट कार्ड जो है वो $629 जो है वो आप इट्स इजी टू गो विद इट। लेकिन आई थिंक उसमें कोई ट्रांजैक्शन अगर कुछ जो ट्रांजैक्शन मनी की वो चार्जेस होते हैं वो शायद आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे वाया क्रेडिट कार्ड। स्केड्यूल और रीस्केड्यूल कैसे करना है? एग्जाम को स्केड्यूल कैसे करना है? एग्जाम को स्केड्यूल बहुत आसान है। हैंडबुक में जाएं, नैक की वेबसाइट खोलें, उसमें उन्होंने एक एक स्टेप वाइज सब कुछ दिया हुआ है। आप अपना अकाउंट बनाएं, फीस पे करें और अपना एग्जाम स्केड्यूल करा लें। स्केड्यूल में ये है कि जिस विंडो के लिए आप, जैसे अभी जो विंडो मैंने आपको कहा था, अभी सिर्फ इस ईयर की जो लास्ट विंडो है वो ओपन है अभी तक, 14 नवंबर को वो क्लोज होगी। तो आप वो विंडो सेलेक्ट करेंगे, आप अपना एग्जाम जो है वो जो विंडो दिसंबर, क्योंकि एग्जाम जो होगा वो दिसंबर फ्रॉम 4th दिसंबर अंटिल 17th दिसंबर, इन डेट्स में कभी भी आप स्केड्यूल कर देंगे। अगर किसी कोई जस्ट इन केस अगर कोई रीस्केड्यूल करना चाहता है, कुछ हो जाता है, कोई इमरजेंसी है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया और वो रीस्केड्यूल करना चाहता है, तो विद इन द सेम विंडो आप रीस्केड्यूल कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपकी एप्लीकेशन पीरियड अगस्त और नवंबर में है और दिसंबर में आपको एग्जाम देना था, लेकिन आप रीस्केड्यूल करके नेक्स्ट ईयर मार्च में देना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आपको विद इन द सेम विंडो, आपको दिसंबर में ही, सपोज मैंने 4th दिसंबर को एग्जाम बुक किया, नाउ देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई वांट टू रीस्केड्यूल इट, तो मैं अंटिल 17th दिसंबर इन डेट्स में से किसी भी उसमें जो होगा रीस्केड्यूल कर सकती हूँ। मैं नेक्स्ट ईयर मार्च में रीस्केड्यूल नहीं कर सकती। अगर आपको कोई स्पेशल केस है, लाइक कोई सर्जरी हो जाती है, कोई फैमिली डेथ है या कोई डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर आ जाता है, तो आप नैक वालों को मेल करें, आप उनको अपना सारा सिनेरियो बताएं, माइट बी दे विल हेल्प यू। बट कोशिश यही करें कि अगर आपने रीस्केड्यूल करना है तो आप सेम विंडो में करें, इट विल बी ईजियर। अगर किसी का कोई स्पेशल केस है सो दे कैन कॉन्टैक्ट द वेबसाइट। इसमें आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट इन्फो, यू कैन मेल नेशनल एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर क्वालिटी, आप इनको मेल कर सकते हैं। This is very very important. All the fees non-refundable and non-transferable. आप एक दफा फी पे कर देते हैं, आप एग्जाम देते हैं, नहीं देते, पैसे गए। तो इसलिए आप बहुत सोच समझ के प्लान करके, तैयारी करके आराम से जो है वो, मतलब कि अच्छा ये देना है, मतलब एक प्रॉपर उससे जाएं, ये रैंडमली मत जाएं। आई थिंक $629 वेरी एक्सपेंसिव। मुझे याद है कि जब मैंने दिया था 2017 में तो ये $500 कुछ था, तो अब ये काफ़ी महंगा हो गया है। तो आई डोंट नो, माइट बी नेक्स्ट ईयर ये थोड़ा सा और महंगा हो जाए। तो इसलिए आप प्रॉपर उसको तैयारी करके आराम से हर चीज़ समझ कर फिर आप लोग जो है वो एग्ज़ाम, लाइक यू कैन गो फॉर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम इज़ ऑफर्ड ऑनलाइन एंड ऑन साइट। ऑन साइट का मतलब ये है कि सेंटर्स जो होंगे वहां पर जाकर आप एग्जाम दें। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं, ऑनलाइन एग्जाम में ये होगा कि आप अपने घर बैठे बैठे एग्जाम देंगे, लेकिन उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस इस तरह होती हैं कि वो काफ़ी कुछ आपसे लेते हैं। मतलब आपका वो पूरा एरिया देखेंगे कि इसमें कोई लाइक रूम लॉक्ड है, कोई ऐसा चीटिंग मटेरियल तो नहीं है, क्योंकि उनको ज़रा सा भी अगर कोई शक होता है ऑनलाइन में तो वो आपको मतलब वो क्या एग्जाम क्लोज कर देते हैं और आपको फेल कर देते हैं। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा वो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है ऑनलाइन एग्जाम में, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं। कोविड की वजह से आई थिंक इन्होंने ये फैसिलिटी निकाली थी कि ऑनलाइन एग्जाम, मेरे सुनने में वैसे एक दफ़ा आया था कि ऑनलाइन एग्जाम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, उसमें पास भी इतनी आराम से नहीं करते, लेकिन ये कोई एज सच वो बात नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन यह है कि थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन इस तरह होती है कि वो आपको कहते हैं कि आप अपना सारा एरिया दिखाएं, आप अपनी हर चीज़ वो देखते हैं, आपके रूम की जहाँ बैठे हुए हैं वो सब चीज़ें वो आपकी देखते हैं।
तो ऑन साइट का ये है कि आप ऑन साइट जाएं और आराम से सेंटर, क्योंकि आप सेंटर में होंगे, आपको हर फैसिलिटी अवेलेबल होगी, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इजीली जो है वहाँ पर जो भी हैंडलर होगा उससे आप बात कर सकते हैं। लेकिन घर में जैसे कि नेट डिस्कनेक्ट हो गया है तो ख़त्म, फिर आप वापस उसको वो नहीं कर सकते। रिजल्ट कब तक आता है? रिजल्ट आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो रिजल्ट जो होगा वो 8 to 12 वीक्स में आता है। विंडो क्लोजर का यहाँ पर ये मतलब है कि मेरी विंडो जो है वो 17th, जैसे मैंने अभी कहा, जो लास्ट विंडो है वो दिसंबर में क्लोज होगी। 4 to 17 ये डेट्स हैं मेरी विंडो की इस ईयर की जो है। तो ये आफ्टर 17 दिसंबर उसके 8 to 12 वीक्स में आएगा। 8 to 12 वीक्स लाइक 2 to 4 months या 2 to 3 months आई थिंक या। तो एग्जाम इसका मतलब है कि 17 दिसंबर के बाद 8 to 12 वीक्स आपको काउंट करने होंगे, उसी के अराउंड जो है वो रिजल्ट आएगा। जब आपका रिजल्ट आ जाता है वो आपको मेल करते हैं कि दैट यू हैव पास्ड और यू डिड नॉट पास। लेकिन जो लोग पास कर लेते हैं उनको 3 to 4 वीक्स में, विद इन 1 month, आपको डिजिटल बैच जो है वो इशू हो जाता है। वो आप लोग अपनी यू कैन आप इसको अपनी मेल में अपने उसमें वो रख सकते हैं। वो इस तरह होता है कि वो इंटरनेशनल होता है, कोई भी जो है वो वेरीफाई कर सकता है उस बैच को। पहले ये लोग मेल करते थे, पिन मेल करते थे, लेकिन अब पिन अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ यूएस जो यूएस में होते हैं उनके लिए अवेलेबल है। तो जैसे कोई अगर यूएस से मंगवा सकता है तो बेशक। पिन जो होती है ये पिन मेल नहीं करते आपको। अब ये जो बीसीपीएस वाले हैं ये लोग मेल करते हैं आपको पिन और सर्टिफिकेट, लेकिन ये सीपीएचक्यू वाले जो हैं वो सिर्फ आपको स्कोर रिपोर्ट और सर्टिफिकेट और बैच जो है वो मेल करते हैं। मतलब इनकी फिजिकल आपको पिन नहीं मिलेगी, सिर्फ ईमेल आएगी इसकी। तो अगर कोई पिन लेना चाहता है तो आपको पे करना पड़ेगा आई थिंक $150 या आई एम नॉट श्योर, $500 और $150 समथिंग लाइक दैट। लेकिन वो सिर्फ आपको यूएस में डिलीवर करेंगे। तो अगर वो कोई वहां से ले सकता है तो गो अहेड। एक चीज और, अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं, लाइक सपोज मैं जिस दिन मेरा एग्जाम है मैं नहीं पहुंची और मेरी अपॉइंटमेंट मिस हो गई है, तो आपको दोबारा से पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपकी उसी को रीस्केड्यूल कर देंगे। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई इसमें कि रीस्केड्यूल जो होता है वो आपने विद इन 48 आवर्स करना होता है। अगर आपके लेस देन 48 आवर्स हैं तो माइट बी यू कैन नॉट रीस्केड्यूल और यू हैव टू पे अगेन। सेंटर में आपने क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, वो आपने अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड लाइक NIC, पासपोर्ट, कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो आप ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी चीज़ जो आपको आइडेंटिफाई करे कि ये सेम पर्सन है। एक चीज़ और इसमें कि अगर मैं एग्ज़ाम पास नहीं करती, इफ़ आई हैव फेल्ड द एग्ज़ाम, मैं इसको दोबारा कब दे सकती हूँ? आप दोबारा जो है, सपोज ये अभी जो विंडो चल रही है वो अगस्त और नवंबर, एप्लीकेशन विंडो जो है वो फ्रॉम अगस्त अंटिल 14th of November है। तो मैं अगर ये इसमें पास, सपोज मैंने एग्जाम दिया और मैं पास नहीं हुई, तो नेक्स्ट विंडो जो ओपन होगी वो मार्च में होगी, उसमें मैं नहीं दे सकती, मुझे थर्ड विंडो में देना पड़ेगा एग्जाम। मैं उस कंसेक्यूटिव जो विंडो है ना उसमें नहीं दे सकती, आई हैव टू वेट फॉर अनदर वन। और उसके लिए अगर आप फेल हो जाते हैं तो यू हैव टू पे अगेन, फुल फीस यू हैव टू पे अगेन। क्योंकि मुझे है कि मैं बीच में कंपैरिजन इसलिए करती हूँ क्योंकि अगर किसी ने BCPS की तैयारी की हुई है या फिर BCPS के लेक्चर सुने हुए हैं तो उनको होगा कि कुछ चीज़ें जो हैं उनकी थोड़ी सी ईजी हैं। लाइक अगर BCPS में आप एक दफ़ा फेल हो जाते हो तो आप हाफ फीस में जो है वो एग्जाम री एग्जाम कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपको जो है वो दोबारा से फुल फी पे करनी होती है। एग्जाम कंटेंट में क्या क्या आता है, बेसिकली मेन 4 डोमेन्स हैं। लाइक आई टोल्ड यू दैट 125 क्वेश्चंस आते हैं जो स्कोर्ड होते हैं, और जो 15 हैं वो प्री टेस्ट होते हैं जिनको स्कोर नहीं किया जाता, वो जस्ट ऐसे ही होते हैं रैंडम। तो बेसिकली अभी तक जो है वो एग्जाम, उसमें ये 4 डोमेन्स जिससे क्वेश्चंस आते थे, जिसमें लीडरशिप आती है, हेल्थ, डाटा एनालिटिक्स,
जिसको हम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट भी कहते हैं, इसमें से 30 क्वेश्चंस आएंगे, और परफॉर्मेंस एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट, इसमें से 40 आइटम्स आएंगे। लाइक इसका मतलब है कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसमें अच्छे हैं तो आपके 40 मार्क्स आप स्कोर करेंगे। पेशेंट सेफ्टी शॉर्ट पोर्शन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आई थिंक इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत ज़्यादा है पेशेंट सेफ्टी की। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, 23% जो होगा वो रिकॉल क्वेश्चन होगा, जिसमें सिंपल आप लाइक जैसे अब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें होगा कि डेटा को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये रिकॉल क्वेश्चंस हैं कि जस्ट स्ट्रेट अवे शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, आपने यस नो में या नॉट यस नो, लाइक उसमें आसान क्वेश्चंस होंगे कि एक आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आपने बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस डेटा है तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए। तो इस तरह के आसान क्वेश्चंस होंगे। 57% जो हैं वो एप्लीकेशन होते हैं, उसमें एक सिनेरियो टाइप क्वेश्चन होगा जिसमें आपको देखना होगा कि इस सिनेरियो में बेस्ट आंसर क्या हो सकता है, और 20% जो वो एनालिसिस होगा। ये एग्जाम कंटेंट फिलहाल की जो विंडो है उसके लिए है। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम कंटेंट नेक्स्ट ईयर से चेंज हो रहा है। जो नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट विंडो ओपन होगी 15 मार्च प्रोबेबली, तो उसमें एग्जाम कंटेंट जो होगा वो इस हिसाब से आएगा। तो जो लोग ऑलरेडी दे रहे हैं एग्जाम इस ईयर, गुड लकी, आप लोग जो हैं पुराने पैटर्न से जाएंगे। नया जो है अभी इसका कोई एज सच वो नहीं हुआ हुआ, मतलब अभी तक किसी ने एग्जाम नहीं दिया तो हमें नहीं पता कि क्या क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह का आएगा, क्योंकि इसमें नए टॉपिक्स जो ऐड हुए हैं वो है पॉपुलेशन हेल्थ एंड केयर ट्रांजिशन, क्वालिटी रिव्यू एंड अकाउंटेबिलिटी, रेगुलेटरी एंड एक्रेडिटेशन। इसमें ऑलरेडी हम ऐसा नहीं है कि जो रेफरेंसेस हम लोग दे रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल नहीं होंगे, नहीं, वो नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होंगे, लेकिन क्वेश्चन की जो क्वेश्चन कंटेंट की जो लाइक पहले शायद रेगुलेटरी उसमें से क्वेश्चन बहुत कम आते थे, 1 या 2, लेकिन अब उसमें से एक पोर्शन उन्होंने सेट कर दिया हुआ है। पॉपुलेशन हेल्थ को जैसे पहले मेरा नहीं ख्याल कि इतना इंपॉर्टेंस मिलती थी, लेकिन अब उन्होंने एक पोर्शन इसमें से सेट कर दिया हुआ है। तो इसकी वजह से जो लोग पुराने पैटर्न से जा रहे हैं वेल एंड गुड, लेकिन जो नए हैं गुड लक। मुझे नहीं पता कि अब किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैं तो पिछले उससे दिया हुआ है, तो इसलिए होप सो ये आसान होगा, क्योंकि अब आपको पता है कि कौन से पार्ट में से क्या क्या आ रहा है। हमारे जो सेशन है, जो हमारा पूरा कोर्स होगा, उसमें हम लोग ये रेगुलेटरी, पॉपुलेशन हेल्थ और क्वालिटी रिव्यू एंड अकाउंटेबिलिटी हम इस पर बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि बस ये है कि मेजर पोर्शन कहाँ से आता है, लेकिन अब उन्होंने जो है वो थोड़ा सा और डिवाइड कर दिया है, थोड़ा सिस्टमेटिक हो गया थोड़ा सा, तो इसकी वजह से शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये चीज़ें हमारी जो ड्यूरिंग द सेशन हम लोग जो हमारा कोर्स होगा इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो आप ये सेशन लेंगे, हमारा पूरा कोर्स अगर ये लेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी ये एप्लीकेबल होगा, क्योंकि बेसिक आइडिया क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये किस तरह कैसे आंसर करना है, पेशेंट सेफ्टी को कैसे लेके चलना है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का क्या काम होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। हमारे स्पीकर हैं स्पेशल, उनका एक सेशन हमने इस पे रखा हुआ है, रेगुलेटरी और एक्रीडिटेशन पे हमारा एक पूरा लेक्चर होगा 1 दिन का। एग्जाम की स्क्रीन ये मैंने इसलिए ऐड किया ताकि वहां जाकर कभी कभार होता है कि पता नहीं कैसी स्क्रीन है, आपको स्क्रीन समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इनकी हैंडबुक में ये दी हुई है बेसिकली। क्वेश्चन होगा, आपने मल्टीपल चॉइस है, आपने क्लिक करना है, इजी। इसमें कैलकुलेटर दिया हुआ होता है कि कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल मैथ क्वेश्चन होते हैं। सिंपल मैथ क्वेश्चन मतलब डेटा इंफॉर्मेशन जो होती है, जैसे मीडियन मोड कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कैलकुलेटर होता है, अदरवाइज मेरे नहीं ख्याल कि किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है। सिर्फ मीडियन मोड की अगर इतने सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं तो वो कैलकुलेट करने में आपको होता है कि इसका मीडियन और मोड कितना होगा, तो वो इसलिए कैलकुलेटर है। बाकी एज सच मेरा नहीं ख्याल कि कैलकुलेटर की कभी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी इसमें ऑप्शंस हैं, अगर आप स्क्रीन देख सकते हैं तो उसमें है नीचे लिखा हुआ एग्जिट, हेल्प। एग्जिट में अगर आप एग्जिट करेंगे तो एग्जाम खत्म हो जाएगा, लेकिन एग्जिट करने के बाद वो आपको पूछता है कि आर यू श्योर, तो
इसलिए है कि अगर एक्सीडेंटली आप क्लिक कर देते हैं तो आप यू कैन गो बैक। इसमें एक ऑप्शन है कमेंट का। कमेंट जो होता है उसके अंदर आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं, और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है नैक वाले इस कमेंट को रिव्यू करते हैं। अगर आपको सपोज ऐसा लगता है कि इसके ऑप्शंस, क्वेश्चन का जो टाइप है या क्वेश्चन के ऑप्शन इससे रेलिवेंट नहीं है, कुछ भी, आप आई डोंट नो व्हाट विल बी योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ केयर क्वालिटी, लेकिन उसमें आप कमेंट कर सकते हैं और इसको रिव्यू किया जाता है कमेंट्स को। बाकी बुक मार्क कर सकते हैं, या यू कैन बुक मार्क के ये क्वेश्चन में दोबारा, जैसे मुझे होता है कि ये डाउटफुल क्वेश्चन है, अच्छा मैं सारे टाइम, क्योंकि आपने टाइम ज़ाया नहीं करना होता, आपने 3 आवर्स के अंदर पूरा करना होता है, तो इसलिए ये है कि आप बुक मार्क कर दो। आपको लग रहा है कि ये कंफ्यूजिंग है कुछ भी, तो आप उसको फिर दोबारा उस क्वेश्चन पे आ सकते हैं। और टाइम भी डिस्प्ले होता है, आप क्लिक करके देख लो कि आपका कितना टाइम रह गया। ये सर्टेन रेफरेंसेस हैं, स्टडी रिसोर्सेज हैं। अगर तैयारी करनी है तो आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर सिर्फ आप एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो HQ सॉल्यूशंस वन ऑफ द फाइन बुक्स। जेनेट ब्राउन, ये भी एक अच्छी बुक है, थोड़ी बोरिंग है लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट देती है। HQ सॉल्यूशंस आसान है, इजी टू रीड है, लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन यू। आप लोगों को, हर बंदे का अपना स्टाइल ऑफ वो होता है, तो उसकी वजह से स्टाइल ऑफ स्टडी होता है, तो इसकी वजह से जो भी आपको इजी लगे। लेकिन इसका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। लास्ट ईयर भी हमने रेफरेंसेस जो हैं वो प्रोवाइड किए थे, जो जो अवेलेबल है। बाकी CPHQ का प्रैक्टिस एग्जाम होता है, वो आप नैक की वेबसाइट पे जाकर कर सकते हैं। आई थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दिस, सो आपने, अगर आपको लगता है एग्जाम से पहले, तो आप एक प्रैक्टिस एग्जाम मतलब आप उस पर प्रैक्टिस कर लें कि आपको, क्योंकि वो एंड में आंसर्स भी आपको देते हैं कि अच्छा ये इस तरह है, ये क्यों है, तो इट विल बी अ गुड, आपको पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ। एक और बुक लास्ट टाइम हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर खुरम, उन्होंने शेयर की थी, वो ऑलरेडी हमारे उस लिंक में है। आई हैव नॉट रिटन हियर आई थिंक, लेकिन वो अच्छी बुक है। उसमें भी आई थिंक कोई बुक का नाम है 100 क्वेश्चंस समथिंग लाइक दैट। तो उसका अच्छा, उसकी अच्छी चीज़ ये है कि उसमें लाइक क्वेश्चंस हैं, फिर आप एंड पे आंसर्स की डिस्कशन है, मतलब जो ऑप्शंस हैं क्वेश्चन के, उसकी डिस्कशन है कि ये क्यों सही है, ये क्यों गलत है। तो इससे बहुत अच्छा आपको ना एक जनरल आइडिया मिलता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, या इस क्वेश्चन में इसकी बात क्यों की गई है। सर्टेन अदर रिसोर्सेज, ये कुछ अदर रिसोर्सेज हैं। इन रिसोर्सेज का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि मैंने सिर्फ CPHQ पास करना है। इन रिसोर्सेज को आप प्रैक्टिकल फील्ड में या प्रैक्टिकली आप इनको इम्प्लीमेंट करें तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लाइक इम्प्रूव करने में बहुत फायदा होगा। कुछ जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन कह रही हो इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं सिर्फ CPHQ पास करने के लिए, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप CPHQ पास नहीं भी करना चाहते, यू डोंट वांट टू गो फॉर एन एग्जाम, जस्ट एटलीस्ट लिसन टू द लेक्चर्स, आपको बेसिक आइडिया हो कि इंटरनेशनल लोग कैसे काम करें, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को वर्क कैसे करना चाहिए एट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। माइट बी यू आर वर्किंग एट अ वेरी लोकल हॉस्पिटल और वेरी स्मॉल हॉस्पिटल, तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं, मतलब ये चीज़ ऐसे कैसे हो सकती है। तो इसलिए मैं सबको इनकरेज करूंगी कि प्लीज़ डू ज्वाइन द सेशंस, लाइव सेशंस आप लोग ज्वाइन करें, तो इसका ये फायदा होगा कि स्पीकर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, सो यू कैन जस्ट क्विकली आस्क द क्वेश्चन। किसी के पास अब कोई सवाल है तो प्लीज यू कैन गो अहेड। I think I should exit the screen because I want to read the comments or Thank you, ma'am, for your giving valuable insight on introduction of CPHQ. So with that, we will go ahead and take some time for questions. Thank you, Hamid. Thank you so much.
If anyone have questions, please welcome. Yes, please do write the questions in the chat box. और आप ग्रुप में अगर लिखना चाहते हैं जो CPHQ का ग्रुप है हमारा उसमें आप लिखना चाहते हैं so please go ahead. I think we will give 5 minutes more to ask questions, 5 to 10 minutes. Because we have to close the session afterwards. Ma'am, one question in the chat box is that which one is better, CPHQ or BCPS? CPHQ और BCPS totally different certificates हैं. CPHQ healthcare quality की SCP, sterile preparation. Sterile, sorry again. Can you repeat the question? Which one is better, CPHQ or BCSCP? Okay. CPHQ जो है वो हेल्थ केयर क्वालिटी की सर्टिफिकेशन है. इसमें आप क्वालिटी को डील कर रहे हैं. जो आप स्टीराइल कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं मुझे यही समझ आ रहा है बोर्ड सर्टिफिकेशन ऑफ स्टीराइल कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट ये टोटली डिफरेंट फील्ड है. स्टीराइल कंपाउंडिंग में ये है कि आप लोग कैसे आई डोंट नो पाकिस्तान में स्टीराइल कंपाउंडिंग का क्या लेवल है. जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें तो मुझे पता है जैसे शिफा या आगा खान शौकत खानम इनका है लेकिन वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट फील्ड है. उसमें आप हाँ इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ. जैसे अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है अपने स्टीराइल कंपाउंडिंग उसमें तो मुझे आइडिया होगा कि मैंने कहाँ से शुरू करना है, मैंने डाटा को कैसे मॉनिटर करना है, किस टाइप का मुझे डाटा चाहिए, मैंने कैसे उसको डिस्प्ले करना है. ये सारी चीज़ें मैं लिंक कर सकती हूँ क्योंकि एट द एंड जो होता है क्वालिटी टोटली डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है. क्वालिटी का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ फार्मेसी की क्वालिटी होती है. क्वालिटी जो होता है पूरे हॉस्पिटल से रिलेटेड होता है. तो जो क्वालिटी के अंडर सारा हॉस्पिटल आ रहा होता है. तो जो फार्मेसी है ये जो स्टीराइल कंपाउंडिंग है ये तो सिर्फ एक फार्मेसी की वो है लाइक फार्मेसी की एक ब्रांच है या फार्मेसी की एक क्या कहते हैं या फार्मेसी की एक ब्रांच है. तो अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर स्टीराइल कंपाउंडिंग की सर्विसेज नहीं हैं तो डोंट गो फॉर इट क्योंकि आप सर्टिफिकेट करके फिर क्या करोगे. लेकिन हाँ प्लान करना चाहते हैं आप सर्टिफिकेट करके कहीं मूव करना चाहते हैं या गो फॉर इट. क्वालिटी जो होती है वो टोटली डिफरेंट है. उसमें आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल हैव एन एज. फिर मैं कहूँगी कि ये मास्टर्स इन क्वालिटी हेल्थ केयर क्वालिटी इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है. बस ये होता है कि आप डिस्टिंक्ट हो जाते हैं. जैसे मेरे साथ अगर 10 लोग काम कर रहे हैं मैं अगर CPHQ सर्टिफाइड हूँ तो आई विल बी डिस्टिंक्ट. आई कैन सी थ्रू थिंग्स विच अदर्स कैन नॉट. सो इसलिए इसका ये फायदा है. कौन सी चीज बेटर है आई एम सॉरी आई कैन नॉट आंसर ऑन दिस. दोनों चीजें अपनी जगह पे बिल्कुल वो हैं मतलब दोनों का अपना वो है लाइक यू नो लेवल ऑफ. आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. And next question is that how much time is required for the preparation of CPHQ? ओके आपके लेवल ऑफ एक्सपीरियंस पे बहुत मैटर करता है एंड द वे यू लर्न थिंग्स. अगर आप क्विक लर्नर हैं माइट बी आप बुक रीड करके आपको समझ आ जाता है बहुत अच्छी तरह, आप याद रख सकते हैं चीज़ें तो माइट बी या विद इन 6 months टू आई थिंक 6 weeks to 6 months इज़ अ गुड फाइन टाइम. लेकिन आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि हॉस्पिटल काम कैसे करता है, मतलब हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करती हैं, तो माइट बी यू विल टेक लाइक लॉन्गर टाइम टू गो फॉर इट. तो जैसे मैंने आई थिंक विद इन 6 months या 6 months में मैंने दिया था. लेकिन उसमें ये भी डिपेंड करता है कि जैसे कोई जॉब कर रहा है फैमिली है तो इट डिपेंड्स सोनली ऑन यू. ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है. लेकिन आप एक दफ़ा गो थ्रू हो आपको पता चले अच्छा ये चीज़ कैसे कैसे है, आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर उसके बाद आप अपनी मर्जी से स्केड्यूल कर सकते हैं. लेकिन वो लोग जैसे मैंने पहले भी कहा एटलीस्ट आप 2 साल किसी भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, आपको पता हो कि हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, देन गो फॉर इट.
बिल्कुल आप फ्रेश हैं, आप फॉर्म डी करके हटे हैं और आप यू वांट टू गो फॉर CPHQ, नो नो प्लीज, इट विल बी वेस्टेज ऑफ, फॉर मी इट विल बी वेस्टेज ऑफ मनी। इतने डॉलर्स देने के बाद भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं कर सके। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो प्लीज डोंट गो फॉर इट। कम से कम 1 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद गुड लक। Do we have any other question? Yes. Another question is that after CPHQ, what can we get different opportunities? Oh, definitely. एक ऑर्गेनाइजेशन में सपोज मेरी ऑर्गेनाइजेशन में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी की पोजीशन खाली होती है, तो अगर सारों में से आप सर्टिफाइड हैं तो दे विल प्रेफर यू, और प्रेफर भी करना चाहिए क्योंकि आप में थोड़ी सी क्योंकि इसमें ये होता है कि आपको चीज़ें कंडक्ट करना आ जाती हैं, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से कैसे चलना है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट कैसे लेकर आनी है। प्रोसेस इंप्रूवमेंट का सिंपल लैंग्वेज में एक कहूँगी कि आपके पास एक एरर रिपीट होता है, तो आप उसको, जैसे मैंने अभी शुरू में भी कहा था कि एक जैसे मैनुअल प्रिस्क्रिप्शन आती हैं किसी हॉस्पिटल में, तो आप एक ऐसा सिस्टम वो कर लें कि उसमें टेक्नोलॉजी मतलब हैंड रिटन की जगह आप टाइप्ड प्रिस्क्रिप्शन आए। तो ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट, इसमें कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, किस किस को एजुकेट करना पड़ेगा, क्या रिसोर्सेज होंगे, मतलब क्योंकि मैनुअल हैं तो डेफिनेटली आपको पेपर उस पर लिखना, फिर भेजना फार्मेसी में, फिर उसको मतलब फार्मासिस्ट बनाएगा या कुछ भी। तो ये चीज़ अगर टाइप्ड होगी तो उसको बनाने में उस मतलब क्या क्या चीज़ें जो इन्वॉल्व होंगी, जो रिसोर्सेज इन्वॉल्व होंगे, तो इट विल बी बेटर। तो इस ये चीज़ जो है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और अपने आप को लिफ्ट करने में काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन फिर एट द एंड यही कहूँगी कि ये मास्टर्स की रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको अच्छा एज मिल सकता है, लेकिन अगर किसी ने मास्टर्स किया हुआ है तो डेफिनेटली वो क्या कहते हैं, उनको प्रेफर किया जाएगा। लेकिन आप जैसे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मास्टर्स नहीं है हेल्थ केयर में, लेकिन आप सर्टिफाइड हैं, तो दे विल प्रेफर यू। I hope that was the answer, or I was Next clear about the question question. is that is there undergraduate are eligible for CPHQ or not? Undergraduate? Yes, undergraduate. एलिजिबल वैसे एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, लेकिन प्लीज डोंट गो फॉर इट। आप पहले एक दफा काम कर लें, फिर उसके बाद जाएं। अगर आप पे कर सकते हैं आपको तो यस गो फॉर इट। अगर आप $629 पे कर सकते हैं, गो फॉर इट। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अंडर ग्रेजुएट, मतलब आप एक दफा बुक को देख लें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने जाना है या नहीं, आपने एग्जाम देना है या नहीं। इतना आसान नहीं है, मतलब और इतना मुश्किल भी नहीं है। जिसके पास एक्सपीरियंस है वो इजीली जा सकता है। अगर आपका बहुत अच्छे, अगर आपकी इंटर्नशिप इतनी अच्छी जगह पे हो रही है, या आपको इंटर्नशिप ही इसी हेल्थ केयर उसमें मिल रही है, या क्वालिटी की इंटर्नशिप मिल रही है, तो ट्राई और या गो फॉर इट अगर आप पे कर सकते हैं और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है। Okay, next question is that what about the summer exam window? Will as of old pattern or new pattern? ओल्ड पैटर्न। जो न्यू पैटर्न है वो नेक्स्ट ईयर 15 मार्च से एप्लीकेबल होगा। उस पे हम अपना नेक्स्ट ईयर जो हम सेशन करेंगे, हम उसमें लाइक ट्राई टू डू, हम लोग ट्राई करेंगे कि हम देखें कि क्या चेंजेस आई हैं, ताकि हम उनको इनकॉर्पोरेट कर सकें अपने कोर्स में। जो अभी जो दिसंबर वाली विंडो में जिसने एग्जाम देना है वो पुराने पैटर्न पे होगा।
I think we have 5 more minutes to close the session. If you have any question, please, you can ask. I think there is no any other question in chat box. I think Okay. it looks like So we we- have covered all of your questions. Dr. Sarwat, is there anything else you wanted to cover up before I wrap up? No, it's, I think मैंने सारा कुछ बता दिया है. बाकी गुड लक जो इस विंडो दिसंबर की विंडो में अपीयर होंगे, एंड गुड लक उन लोगों के लिए भी जो नेक्स्ट ईयर प्लान करें हैं, और जो नहीं भी प्लान करे प्लीज़ डू ज्वाइन द सेशन, क्योंकि आप लोग ज्वाइन करते हैं तो ही स्पीकर्स इनकरेज होते हैं कि बार बार आकर वो अपना टाइम निकालते हैं और बार बार आकर लाइक लेक्चर देते हैं, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट. जो जितने भी स्पीकर्स हैं वो मतलब बहुत हाई लेवल पे जॉब्स करें, लाइक डायरेक्टर, मैनेजर, दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो जितने लोग लाइव सेशन ज्वाइन करते हैं तो इट रियली इनकरेजेस द स्पीकर टू कम एंड टीच